Good morning, class. Before starting the lecture, I want to remind all the instructions related to COVID 19. Children, wearing mask whenever you go out from your houses, follow physical distancing, maintain hand hygiene, stay at least 6 feet from others, wash your hands regularly, frequently, always with soap and water for at least within 20 seconds. Remember, don't touch your face, do not share food or drinks with others. Children, regularly our school teachers has instruct to you all for your and your family safety. So children, follow these instructions regularly and carefully. Thank you. Children, in this chapter, I had explained the meaning of depreciation with two methods. First method is straight line method and second one is written down value method. In straight line method, depreciation will be charged in a fixed amount year to year during the useful life, and at the end assets value can be balanced and all value can be depreciated. If assets value has balance after the useful life, it's called be scrap value, estimated value, or can be salvage value. But in written down value method, amount of depreciation goes on decreasing rate in every year. It will reduce, but every year amount of depreciation would be changed because it will be calculated every year on the balancing amount of asset. So children, I had already explained both the method of depreciation with the numerical or theoretical notes. In this chapter, assets can be written off to zero. Today, I am explaining some other important topics from this chapter. So, let's continue. Today we will discuss about the topic provision. So there are certain expenses, losses which are related to the certain accounting period but amount of which is not known with certainty because they are not yet incurred. It is necessary to make provision for such item for ascertaining true net profit. For example, a trader who sells on credit basis known that some of the debtors of the current period would default or may not pay whole amount. So children, the term provision means any amount written off or retained by way of providing depreciation or retained by way of providing for any unknown liability called provision. True and fair, it's necessary the trader create a provision for doubtful debts to take care of expected loss at the time of realization from debtors. In a similar way, provision for repair and renewals may also be created to provide for expected repair and renewal of the fixed assets. Example of provisions are provision for depreciation, provision for bad and doubtful debts, provision for taxation, provision for discount on debtor, and provision for repair and renewals. It must be noted that the amount of provision for expense and loss is a charge against the revenue of the current period. Creation of provision ensure proper matching of revenue and expenses and hence the calculation of true profits. Provision are created by debiting the profit and loss account in the balance sheet. The amount of provision may be shown either. So children, according provision is a deduction which has deduct against the profit. So I have explained with the example. Suppose children, you are working. You are working and X salary is 50,000. So suppose in this question X has a worker and his salary is 50,000 rupees. So first you have decided and X also has decided how
he will deal with his with his expenses. So suppose x salary is 50,000. Now he will decide first expenses. Suppose he has spent his money in first grocery plus vegetable expenses, these called provision, first priority expenses. Second, he deal with the household, house rent, electricity bills, it's also called provision. And third is other regular expenses. So in this question, X salary is 50,000. First, he will decide which on which expenses he will spend his money. So according this, he will spend his money in first grocery, vegetable, daily expenses. Second one, he will decide for a house rent, electricity bills, and third is other expenses. So according this, X first always spend his money on his priority grocery and household expenditure. Second one is house rent, electricity bill. It cannot be changed. So provision is a deduction from against the profit. तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो प्रोविजन है वो आपके जो प्रॉफिट है या जो आपकी रेवेन्यू इनकम है उसके अगेंस्ट में जो आप डिडक्शन करते हैं उसे हम प्रोविजन कहते हैं. सो चिल्ड्रन, आई ऑल्सो हैड अ एग्जाम्पल. सो सपोज एक्स यहाँ पर एक वर्कर है, उसकी जो इनकम है वो 50,000 रुपीज़ है और अकॉर्डिंग दिस ही हैज़ टू पे 2,000 रुपीज़ फॉर अ इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो यहाँ पर अगर वो 2,000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे करता है तो उसके लिए उसने यहाँ पर 50,000 में से सपोज 2,000 जो है वो ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया अमाउंट. और किसके लिए? अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए. तो ये एक प्रोविज़न का एग्जाम्पल है. इसके बाद हम कह सकते हैं कि 2,000 रुपीज़ जो आपके पास अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए वो एक एग्जाम्पल आपका प्रोविज़न का है. इसके बाद है कि जब भी हम इस तरह से जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं जिनको हम डिडक्ट करते हैं और जो हमें पता है कि इन फ्यूचर इट मे बी हैपन कि ये होंगे, तो हम उन सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ऑलरेडी डिडक्ट कर लेते हैं अपने प्रॉफिट में से या फिर अपने जो इनकम है उसमें से. तो इसी तरह से जो कंपनीज होती हैं, सो कंपनीज ऑलवेज फॉलो दीज रूल्स कि जो भी हमारे पास रेवेन्यू आने वाला है, जो भी हमारे पास इनकम होने वाली है, जनरेट होने वाला है प्रॉफिट, उसमें से हम क्या करेंगे कि कुछ डिडक्शन कर लेंगे अपने प्रोविजंस के लिए. इट मे बी रिलेटेड टू अ प्रॉफिट और इट मे बी रिलेटेड टू अ लॉस, कि अगर फ्यूचर में हमें लॉस होता है तो भी हम एक सेफ मोड में रहेंगे, हमारे पास कुछ पैसा जो है वो रिजर्व में रहेगा. और कुछ पैसा दूसरी तरफ अगर हमें इन फ्यूचर कोई लॉस भी नहीं होता है तो और हमें वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो पैसे हमारे पास एक सेफ मोड में हमें रखेंगे और वो आफ्टर सम टाइम इट विल बी कैलकुलेटेड एज अ रिजर्व. अगर हमें इन फ्यूचर कोई लॉस नहीं हुआ, हमारी कोई लायबिलिटी ड्यू नहीं हुई और हमने उसके लिए कुछ ऑलरेडी डिडक्शन करके रखा था और इन फ्यूचर हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो वही पैसा हमारे लिए एक टाइम के बाद क्या बन जाएगा? रिजर्व बन जाएगा. तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोविजन की. तो प्रोविजन का मतलब यही है कि सपोज एक्स है तो एक्स अपनी जो इनकम है, जो उसके पास रेवेन्यू है या उसके पास जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, उसमें से सबसे पहले वो अपनी जो प्रायोरिटी है वो अपने एक्सपेंडिचर को देगा जो उसके डेली नीड्स के होंगे. इसके बाद वो सेकंड प्रायोरिटी वहां पर देगा कि जो उसको कंपलसरी है पेमेंट करनी ही करनी है, लाइक हाउस होल्ड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. सो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोविजन के. अब यहाँ पर अगर कोई एक्स है, सपोज एक्स है, उसकी इनकम जो है वो तो इंक्रीज और डिक्रीज में भी हो सकती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका हाउस रेंट या इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकते, वो क्या है? फिक्स चार्ज हैं. तो इसीलिए उसको अपनी इनकम या अपने प्रॉफिट में से एक फिक्स जो चार्ज हैं वो डिडक्ट करने होंगे अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए. दीज कॉल द प्रोविजन and these are the example for provision. So children, I had explained one another example. Suppose
किसी एक्स की जो इनकम है वो 30,000 है, आपकी जो एक्सपेंडिचर है मंथली वो 20,000 है। अब आपको 30,000 में से आप 20,000 जो है अपने एक्सपेंडिचर को अगर डिडक्ट करते हैं, 30,000 इज योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर्स आर 20,000, तो आपके पास पर मंथ 10,000 जो है यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वो रिमेन हो जाएगी। इट्स कैन बी कॉल्ड रिजर्व। तो हम इसको क्या करेंगे, रिजर्व करते रहेंगे कि हमें चलिए कुछ हमारी जो है वो सेविंग्स हो रही है। लेकिन इसके बाद कि सपोज किसी मंथ में आपकी जो सैलरी है वो 30,000 आपको मिलने थे, लेकिन यहाँ पर आपको 20,000 ही जो इनकम हुई है दिस मंथ, किसी पर्टिकुलर मंथ में आपको 20,000 ही अमाउंट जो है रिसीव हुई एज अ इनकम सैलरी। तो यहाँ पर अब ये हो सकता है कि आपके जो इनकम है, जो इनकम आपकी है या इसी तरह से जो प्रॉफिट है, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो आपका कभी बढ़ भी सकता है और कभी आपका डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन आपके इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो चेंज नहीं हो सकता। आप रिजर्व अपनी सेविंग्स कर पाते हैं, अपने कोई इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, अपने कोई अमाउंट में से आपके प्रॉफिट या आपके जो इनकम है रेगुलर उसमें से आप कुछ जो एक पार्ट है उसको आप रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन आपके उस रिजर्व की वजह से आपके जो प्रोविजंस है, जो आपके ऊपर एक लायबिलिटी ड्यू है आपकी कंपनी की या किसी अदर पर्सन की या किसी भी फर्म की, वो आपकी क्या नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। प्रोविजन लाइक अ लायबिलिटी कि जो आपके ऊपर ड्यू है और जो आपको पे करनी ही करनी है विद इन आपके पास, सपोज चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपकी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपकी प्रॉफिट बढ़े या कम हो जाए, लेकिन आपकी जो लायबिलिटी है वो चेंज इन सब रीजन की वजह से चेंज नहीं हो सकती। सो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है जिसका मतलब है प्रोविजन। सो अकॉर्डिंग दिस यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस लॉसेज विच आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी बिकॉज दे आर नॉट येट इनकर्ड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद इन अकाउंटिंग ईयर वी विल फेस एनी एक्सपेंसेस और एनी लॉसेज बट वी कैन नॉट सर्टेन बिकॉज यट इनकर्ड, कि हम उनके बारे में पहले ही एक एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि इन फ्यूचर हमें कितना जो वहाँ पर प्रॉफिट है वो मिलेगा, या हमें कोई एक्सपेंसेस कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे, या हमें कितना पर्टिकुलर लॉस फेस करना होगा। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है कि हमें फ्यूचर जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी फेस करने होंगे, लॉसेस को भी फेस करने होंगे, बट विच अमाउंट इट विल बी हेल्ड वी कैन नॉट डिसाइड, कि वो कितना होगा एक फिक्स अमाउंट में उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर सच आइटम फॉर असर्टेनिंग ट्रू नेट प्रॉफिट बट वी विल डिडक्ट फ्रॉम आर प्रॉफिट और आर इनकम। लेकिन हम ऑलरेडी उन सभी एक्सपेंडिचर्स को या उन लॉसेस को पहले ही अपने जो प्रॉफिट या हमारे जो यहाँ पर प्रॉफिट होते हैं या जो रेगुलर इनकम होती है उसमें से हमें पहले ही उनको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि एक जो एक्स है उसको नेक्स्ट ईयर सपोज अपने बिल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो पे करने हैं, जब तक वो पे नहीं हो रहे हैं तब तक वो एक लायबिलिटी ड्यू रहेगी एक्स पर। अब वो जो बिल हमारा हेल्ड होने वाला है इन फ्यूचर नेक्स्ट मंथ वो कितना है, 2,000, 2,500, 3,000, वी कैन नॉट डिसाइड, तो हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो एक एस्टिमेशन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें अभी अपने जो इनकम है उसमें से उसको ऑलरेडी डिडक्ट करना होगा और उसको एक यहाँ पर एक पोर्शन जो है उसका अलग हमें डिडक्ट करके अलग रखना पड़ेगा और इन फ्यूचर हम उस अमाउंट से अपनी जो लायबिलिटी है उसको पे करेंगे। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी यहाँ रहा है, अ ट्रेडर हु सेल ऑन क्रेडिट बेसिस known that some of debtors of current period would default or would not pay होल अमाउंट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि कोई ट्रेडर है जो अपना सामान बेचता है ऑन क्रेडिट बेसिस बट इन फ्यूचर डेप्टर्स विल बी डिपेंड, इट विल पे होल द अमाउंट फॉर हिज लायबिलिटी और नॉट।
तो यहाँ पर उसको जो डेप्टर से पैसा मिलने वाला है ट्रेडर को वो पूरा पैसा मिलता है, या कहीं पर डिफॉल्ट हो जाएगा, या जो अमाउंट है वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसके लिए वो अभी ऐसा कोई एस्टिमेशन यहाँ पर नहीं लगा सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी उसके लिए उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उस लॉस को फेस करने के लिए भी उसको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल may also be created for expected repair or renewal of the fixed asset. Example of provision, यहाँ पर जो प्रोविजन है ये हमारा बहुत सारे फिक्स एसेट्स पे भी चार्ज होता है, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं वो लगातार धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती हैं एक फिक्स अमाउंट में और एक जो है चेंजिंग अमाउंट में, डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पर प्रोविज़न की अगर सपोज हमारे पास कोई मशीनरी है या कोई हमारे पास फिक्स एसेट्स है तो इसके लिए हमें हमेशा ऑलरेडी प्रिपेयर रहना पड़ता है कि धीरे धीरे हमारी जो एसेट्स हैं वो पुरानी होंगी और उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कि सपोज कोई मेरा डेप्टर है जो जिससे मुझे 50,000 अपने किसी सेल के लिए मिलना था, लेकिन अगर वो मुझे 10,000 नहीं देता है और 40,000 की पेमेंट पे करता है, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कि आपको 50,000 की जो अमाउंट थी वो रिसीव होनी थी, लेकिन उसने आपको केवल 50,000, 15,000 या 20,000 ही अमाउंट जो है वो पे की है। इट्स कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो हम ऐसे डेब्टर्स को बैड और डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। इट कैन मे बी और मे बी नॉट। नेक्स्ट इज टैक्सेशन, कि हमारी इनकम कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है या हमारी सेल हो जाती है, तो टैक्सेशन जो है वो भी कभी एक जैसे परमानेंट नहीं होते। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर इनकम एंड योर प्रॉफिट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर, कि डिस्काउंट आप डेप्टर्स को कितना डिस्काउंट देते हैं, किसी को 10%, किसी को 5%। तो ये भी हमारा एक नेचर है जो एक ट्रेडर अपने जो डेप्टर्स हैं उनके लिए यूज़ करता है। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, कि किसी मशीन पे कितना रिन्यूअल्स होने वाला है, कितना रिपेयर चार्ज लगने वाले हैं, तो ये हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं लेकिन हम इनको फिक्स नहीं कर सकते। सो चिल्ड्रन, प्रोविजन, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो प्रोविजन क्या है कि प्रोविजन इज अ डिडक्शन विच हैज़ डिडक्ट अगेंस्ट द प्रॉफिट और इन अ इनकम। हमेशा हमें डिडक्ट करना होगा हमारी इनकम से या फिर हमें अपने प्रॉफिट से। Next, it must be noted that the amount of provision for expense and losses is charged against the revenue of the current period. Creation of provision ensure proper matching of revenue and expenses and hence the calculation of true profit. Provisions are created by debiting the profit and loss account in the balance sheet. The amount of provision may be shown either by way of deduction from the concerned asset on the asset side. For example, provision for doubtful debts is shown as deduction from the amount of sundry debtor. तो इसका मतलब है sundry debtor कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सपोज कोई डेप्टर है, किसी को मैंने कोई सामान बेचा, उससे मुझे 50,000 की अमाउंट मिली है, तो ये हमारा डेप्टर है। अब वो डेप्टर मुझे मना कर रहा है कि 10% मैं आपको जो वैल्यू है वो कम करके पे करूँगा, तो जो मुझे पेमेंट वहाँ पे मिलनी है वो 10% कम हो रही है, तो इसे हम कहेंगे डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न फिक्स एसेट, और आपकी जो फिक्स एसेट है जो आपको पेमेंट मिलनी है, आपकी जो यहाँ पर पेमेंट है वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज वो डिक्रीज हो जाएगी और फाइनल जो पेमेंट है वो डेप्टर की तरफ से आपको पे कर दी जाएगी। On the liability side of balance sheet along with current liability, for example provision for taxes and provision for repair and renewals। और जब भी हम फिक्स एसेट में से कोई भी डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो वो भी हमारे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में यूज होंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन, हाउ वी विल डील विद provision. The accounting treatment of all types of provisions is almost similar. Therefore, the accounting treatment is explained here, taking up the case of provision for doubtful debts. As already stated that when business transactions take place on credit basis, debtors account is created and its balance is shown on asset side of the balance sheet. These debtors may be of three types. So
according to the provision, debtors has three types. First debtor is good debtors, second is bad debts, third is doubtful debts. So explain these. Discuss these debts. As already stated that when business transaction take place on credit basis, debtors account is created and its balance is shown on asset side of the balance sheet. These debtors may be three types. First, good debtors are those from where collection of debt is certain. Second, bad debts are those debtors from where collection of money is not possible and the amount of credit given in a certain loss. Third, doubtful debts are those debtors who may pay but business firm is not sure about the collection of full amount from them. In fact, as a matter of business experience, some percentage of such debtors are not likely to pay, hence treated as doubtful debts. To consider this purpose, sorry, this possible losses on account of non-payment by some debtors. It is a common practice and necessary also to make a suitable provision for doubtful debts and the time of ascertaining true profit or loss. The provision for doubtful debts is usually calculated as a certain percentage of the total amount due from sundry debtors after deducting writing off all known bad debts. Provision for doubtful debts is also called provision for bad and doubtful debts. It is created by deducting the amount of required provision to the profit and loss account and crediting it to provision for doubtful debts account. For creating a provision for doubtful debts, the following journal entry is recorded. Profit and loss account debit with the amount of provision. To provision for doubtful debt account. This is explained with the help of the following example. This observe an extract of trial balance from the book of Tiran Traders on March 31st, 2014 is given below. Account title Sunday debtors 68,000 debit amount. Additional information. Bad debts proved but bad but not recorded amount to rupees 8,000. Provision is to be maintained at 10% of debtors. In order to create the provision for doubtful debts, the following journal entry will be recorded. So children, according this question, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा एक डेप्टर था जो हमें 68,000 की पेमेंट करने वाला था, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बैड डेट्स प्रूव बैड बट नॉट रिकॉर्डेड अमाउंट 8,000 कि ऑलरेडी यहाँ पर 8,000 का एक जो बैड डेट्स है वो प्रूफ हो चुका है कि 68,000 की अमाउंट में से 8,000 रुपीज़ हमें मिलने वाले नहीं हैं. इसके बाद प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ डेप्टर. साथ ही साथ हमने 10% का डेप्टर्स को एक्स्ट्रा जो है प्रोविज़न यहाँ पर गिवन किया था. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरल एंट्री बनानी है कि हमें 68,000 में से कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव होने वाली है. सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन डेप्टर इज अमाउंट 68,000. ऑलरेडी one debtor has proved as a bad debt for rupees 8,000 and the company has given 10% provision of debtors. So first journal entry we will prepare bad debts account debit 8,000 to sundry debtors account. बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कि इसने हमें डायरेक्ट जो है वहाँ पर पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो हम इसके बाद इसकी जो जनरल एंट्री है वो पास नहीं करेंगे. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 टू बैड डेब्ट्स. अब हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. बैड डेब्ट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 का. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कि ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइड 10% अमाउंट ऑफ डेप्टर as a provision. So for creating provision for doubtful debts,
6,000 का हमने प्रोविज़न हमने दिया है, हमने वहाँ पर डिस्काउंट दिया है, एज ए डिस्काउंट आप कह सकते हैं। और 8,000 का कोई डेप्टर है जिसने हमें पेमेंट करने के लिए मना कर दिया। वर्किंग नोट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 10% ऑफ सन्डी डेप्टर इज 68,000 minus 8,000. Now 60,000 will be received, but after 10% it amount already has decreased 6,000. So according this question, a debtor has given 68,000 to the company, but one debtor has called bad debts as rupees 8,000, and another one is company has given 10% provision already has given on the assets. So according this we will prepare general entries. These are, so children, according to the provision means any amount written off or retained by way of providing depreciation or retained by way of providing for any unknown liability called provision. It can be calculated on fixed asset. Examples are provision for depreciation, bad and doubtful debts, taxation, discount on debtors, repairs and renewals. Accounting treatment for provision for doubtful debts. Doubtful debts and debtors can be calculated in three types. First, good debts. Those debtors from all the due amount has collected are called good debts. Second, bad debts. Those debtors from where collection of money is not possible and the amount of credit given is a certain loss are called bad debts. Next one is doubtful debts. Those debtors who may pay but business firm is not sure about the collection of full amount from them are called doubtful debts. So according this, provision is a deduction which has deduct against the profit or our income. So children, I hope this concept will be clear. So take care. Goodbye.